Builders of New India is a program that celebrates the architects of modern India. In season 3 of Jaane Anjane, we explore the inspiring journeys of people who are shaping our nation's destiny. From visionary leaders to grassroots innovators, from professionals in education, finance, and civil governance, to entrepreneurs and established business wizards. We delve into their struggles, victories, and the enduring spirit that drives their persistent pursuit of progress. Join us as we celebrate the designers who are crafting India's future, one brick at a time. Builders of New India, a journey where vision meets action. In this episode, I am delighted to have a first generation businessman जिन्होंने सिक्योरिटी इंडस्ट्री मार्केट में ना केवल एक रेवोल्यूशन ला दिया है but also he has written history in the golden words as far as Make in India is concerned. My very dear friend who habitually flies the tricolor on a global platform, the founder and managing director of Sparsh CCTV, संजीव सहगल, जाने अनजाने में आपका बहुत बहुत स्वागत और हम अभिनंदन करते हैं. Thank you very much. Sanjeev, neither I nor anyone in the professional world, especially in the electronics technology and related policy making decision, needs any introduction about you. I also do not need any introduction about your personal life because we have been friends now for almost quarter of a century. But I think the audience today would like to know a lot more about you. So let us start from your childhood phase, your humble beginnings, your early days in the business and where you have reached today. So thank you, Raji, for inviting me for this interaction. I was born in 1970 in a small town in Haryana, Ladwa near Kurukshetra, in a low medium class family. My father was into a government job and started from a very early age because due to the family problems, as my grandparents had to move from Punjab during the partition to India and they had to leave everything back in Pakistan. So they have to rebuild from the very scratch. And my father, I have seen my father's journey from a stenotypist to retiring as a CEO of a fertilizer corporation of India and seen all ups and downs within the family and around it. So that's where the journey started off. I did my early days schooling from New Greenfield School, New Delhi, Saket, and then did my middle school and the high school from Lucknow, from City Montessori School. Then moving on to doing my engineering in electronics engineering from Manohar Bhai Patel Institute of Engineering and Technology, Gondia. So that was during my college days. And college days were very important. They made me learn so many things about the life and made very good friends all around it. And that's where the journey started off. And when I came back after doing engineering to Delhi, it was all कॉलेज के दिन खत्म हुए थे और तब समझ में आया कि लाइफ इज नॉट दैट इजी एंड आज के टाइम में बहुत डिफरेंट है. एट दैट टाइम नोबडी टोल्ड व्हाट टू डू. तो जो जॉब मिली तो आई स्टार्टेड माय करियर इन अ सेल्स जॉब. एंड आफ्टर स्टार्टिंग माय सेल्स जॉब, पहले एक जॉब किया डायनाबॉक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, वाज अ कैनन डिस्ट्रीब्यूटर. एट दैट टाइम there were restrictions and companies were not operating directly into India. So I started my career with selling of photocopiers and fax machines of Canon. And then I did second job in one of the Japanese companies who were making knitting machines. They were the world's #1 company for doing knitting machines. So when I was doing that job, then I realized in the very first year
आई डिड बिजनेस ऑफ ऑलमोस्ट 10 करोड़। तो वहां से दिमाग घुमा, यार ये क्या कर रहे हैं, किसी और के लिए क्यों काम कर रहे हैं, यहाँ से कुछ डिफरेंट किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा है वो कहीं ना कहीं बचपन से था। मतलब फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड ऑल्सो क्रिकेट टूर्नामेंट्स कराना। क्रिकेट टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा नॉमिनेशन नहीं आया तो पता चला अपने ही 4 मैच खेल लिए बाकी टीमों को बाहर करने के लिए। तो उस तरह का एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना कहीं, जागरण कराना, रामलीला कराना, दिवाली मेला कराना, कुछ ना कुछ ये बचपन से लगा रहा। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर हमारी जो मेस होती थी वो कोऑपरेटिव होती थी। तो 6 महीने तक तो रैगिंग वगैरह चलती रही। 6 महीने बाद कोऑपरेटिव जो मेस थी वो चलाने लगे। तो करीब करीब 600 लोग उस मेस में होते थे। 600 लोगों का खाना मैनेज करना, कहीं ना कहीं वो सब चलता रहा। तो मतलब एक बड़ा यूनिक प्रोपोजिशन था। मतलब 4 साल में से मैंने 3 साल मेस चलाई। मतलब फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट चलाता नहीं है, बट कहीं ना कहीं वो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा वहां से था। 500 लोगों का, 600 लोगों का खाना मैनेज करना, उनके लिए बाइंग करना और साथ में पढ़ाई भी करना। और इसी कीड़े के चलते पॉपुलर हो गए थे। तो फाइनल ईयर कॉलेज में कॉलेज यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे। तो पर जब सड़क पर उतर कर आए वापस तो समझ में आया, नहीं यार ये तो सब वहां पे तो सब हरा हरा था। पिताजी पैसे दे रहे थे, पिताजी के पैसों पे ऐश हो गई। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। तो फिर जब आपको बताया कि सेकंड जॉब करी, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप का कीड़ा कहीं ना कहीं पहले से था। और जो पहली जॉब करी थी उसमें टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट करते थे। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट जो मतलब डायनावॉक्स ने फोटोकॉपियर और वो करता था। फिर डायनावॉक्स ने ईपीबेक्स भी स्टार्ट कर दिए थे और वो दिल्ली की ही किसी एक लोकल कंपनी से टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट बनवाते थे। तो बीइंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड इवन इन द सेल्स, तो मुझे कंपनी ने उसकी सपोर्ट के लिए, उसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए उस चीजों में इन्वॉल्व कर दिया था। तो वहां पर कुछ लोगों से दोस्ती हो गई थी, उनमें भी कुछ कीड़ा रहा होगा एंटरप्रेन्योरशिप करने का। हमें लगा यार, मतलब कई सारे आइडियाज पे एक्सप्लोर किया, बिजनेस करना है। मतलब ये कहीं ना कहीं ये करके आ गया कि यार अगर 10 करोड़ का काम 1994 में किसी और के लिए कर सकते हैं तो डेफिनेटली अपने लिए भी कुछ करा जा सकता है। और बड़ी सारी चीजें एक्सप्लोर करी। मतलब इवन मशरूम की खेती करने के लिए भी ट्रेनिंग करके आए 1 महीने के लिए। तो मतलब इट वाज कि कुछ भी करना है, मतलब कुछ करना है। तो बट अल्टीमेटली डिसाइडेड कि टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट करते हैं। तो दिन में जॉब करते थे, एक छोटा सा ऑफिस ले लिया लाजपत नगर में, नेहरू प्लेस में ऑफिस होता था। तो वहां से दिन में जॉब करते थे, शाम को सामान वामान इकट्ठा किया, पार्टनरशिप फर्म एक कॉलेज फ्रेंड के साथ में स्टार्ट कर ली। रात में असेंबलिंग करते थे, वो करते थे। तो किसी तरीके से कर करा के एक पहले 100-200 टेलीफोन हमने असेंबल कर लिए। और डायनावॉक्स इलेक्ट्रॉनिक में अच्छे संबंध थे, उन्हीं के पास चले गए। उनसे बोला कि सर ये देखो ये हमने बनाया है, अब आप बताओ सर, सपोर्ट करो। और वहां से ये एंटरप्रेन्योरशिप हुई। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, फिर छोटे ईपीबीएक्स बनाए। और पार्टनरशिप में था, कुछ चीजें नहीं सूट करी तो देन आई हैड टू मूव आउट ऑफ दैट पार्टनरशिप। जब पार्टनरशिप से बाहर निकले तो तब पता भी नहीं था कि क्या करेंगे पार्टनरशिप से। मतलब जोश जोश में बाहर निकल आए। और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, शी वाज इन 5th मंथ। और एक मेरा कॉलेज फ्रेंड होता था धीरज शर्मा, वो मुझे बहुत टाइम से पहले से समझाता था कि यार पार्टनरशिप मत कर। और वो मेरे घर आया, उसको जैसे ही पता चला और उसने आके खींच के थप्पड़ मारा। उसने बोला तेरा दिमाग खराब हुआ है। मतलब पहले मैं समझा रहा था, अब व्हेन योर वाइफ इज इनटू प्रेगनेंसी, तुम्हारे यहाँ बच्चा होने वाला है, एंड लेफ्ट इट। मैंने कहा नहीं यार, देखेंगे जो भी करेंगे। और वहां से एक नई जर्नी शुरू हुई। हिंदुस्तान का पहला कॉलर आईडी डिवाइस बनाया हमने। आज कॉलर आईडी की, आज के बच्चों को लगेगा कॉलर आईडी क्या है, सबके नंबर आते हैं। बट जब हम 1998 की बात करते हैं तो कॉलर आईडी वाज अ रेवोल्यूशन। मतलब हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में बाजार करके एक इंसर्ट आता था थर्सडे को। जब हमारा प्रोडक्ट रेडी हो रहा था तो उसकी लॉन्च के लिए उसमें एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट दिया, और हिंदी में एडवर्टाइजमेंट दिया, इंग्लिश अखबार में। फोन उठाने से पहले जाने आपको कौन कॉल कर रहा है, एंड इट वाज अ रेवोल्यूशन। मतलब 6 बजे अखबार बंटना शुरू हुआ, घर का फोन नंबर दिया था उसमें। सुबह 7:30 बजे पहली कॉल आई, शाम 5 बजे तक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से और नोएडा के एसपी जो हैं वो हमारे घर की छोटी सी 10 बाय 10 फुट की बालकनी के ऑफिस में होके जा चुके थे। तो वहां से कुछ ना कुछ गैप्स को दिखता रहा, कॉलर आईडी बनाया। फिर एक, अगर पुराने कुछ लोगों ने ध्यान होगा कि पहले एसटीडी डायलिंग बहुत महंगी होती थी, तो उसके लिए एक 95 का लॉक, मतलब 95 की एक डायलिंग स्टार्ट करी थी विद इन 60 किलोमीटर। उसके कुछ लॉक्स बनाए। पर ये सारी चीजें, टेलीकॉम में रेवोल्यूशन बहुत तेजी से चल रहा था। तो वहां पर क्या हुआ कि उसके साथ साथ खाली उतनी चीजों से काम हो नहीं पा रहा था। तो कहीं से एक
आइडिया आया, किसी एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू आया कि यार उसको सीसीटीवी लगाने थे। वहां पर शायद पहली बार हमारी और आपकी मुलाकात हुई थी, जब पहला प्रोजेक्ट एक वो आया सीसीटीवी लगाने का। वहां से पता करना शुरू करा यार ये सीसीटीवी क्या चीज है, और वहां से ये सीसीटीवी की जर्नी स्टार्ट हुई। और 2002 में हमने स्पर्श सिक्योरिटी, पहले स्विफ्टकॉम टेक्नोलॉजीज के नाम से करते थे जो टेलीकॉम से रिलेटेड था, और फिर सीसीटीवी में जब स्टार्ट किया तो स्पर्श सिक्योरिटी के नाम से आज भी हमारी वेबसाइट है spurshsecurity.com। तो वो स्पर्श ब्रांड नेम है, और वहां से स्टार्ट हुआ। सीसीटीवी एसेसरीज से बनाना शुरू करा हमने। सीसीटीवी जब ये कंपनी स्टार्ट करी तो हमें लगा कि यार सिक्योरिटी के सारे जितने भी वर्टिकल्स हैं, सारे वर्टिकल्स के प्रोडक्ट हमारे पास होने चाहिए। तो सीसीटीवी की एसेसरीज बनाई, स्विचेस, पावर सप्लाईज, वीडियो एम्पलीफायर्स, और तब ये रिकॉर्डर्स वगैरह होते ही नहीं थे। ये उस टाइम की बात कर रहे हैं जब सीसीटीवी वॉज अल्ट्रा अल्ट्रा लग्जरी। और फिर अलार्म पैनल बनाया, वो भी एक यूनिक था, जहां पर फायर और इंट्रूडर अलार्म एक छोटे से बॉक्स के अंदर बनाया हमने। फायर अलार्म्स अलग होते थे, ये अलग होता था। तो इस तरह की चीजों पे करते हुए 2008 में हमें मौका मिला, तो हमने पहला इंडिया में डिजाइन किया हुआ सीसीटीवी कैमरा बनाया। वहां से एक नई रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई। यहाँ से हमने एक मेजर ग्रोथ पाथ लिया। सोनी हमारा टेक्निकल पार्टनर था, और वो भी एक बड़ा यूनिक सा प्रपोजिशन था। सोनी को कन्विंस करना कि एक हमारी जैसी छोटे साइज की कंपनी, तब हमारे जब सोनी से हम पहली बार मिले थे, जब सोनी से हमारा टाइप हुआ था, वी हैड अ टर्नओवर ऑफ अराउंड 2.5 करोड़ ओनली। बट वहां से जो जर्नी स्टार्ट हुई, वी एट दैट टाइम इन नेक्स्ट 4 years वी ग्रू 11 times फ्रॉम 2.5 crores to 33 crores in 4.5 years टाइम। फिर हिंदुस्तान का पहला आईपी कैमरा बनाया, पहला डीवीआर बनाया। फिर यहाँ पे बीच में कुछ चैलेंजेस आ गए, चाइनीज का ऑनस्लॉट आ गया। बट आज भगवान की दया से, गॉड ग्रेस से, उन सारे पीरियड से बाहर निकल आए, और बड़े सारे और उतार चढ़ाव भी देखे, मतलब। और आज फिर बीच में काफी बुरा वक्त भी देखा, और कंपनी जहां तक नीचे तक जा सकती वहां तक गए। बट तब तक मेक इन इंडिया का कुछ दोबारा से शुरू हो गया था बहुत अच्छे से। तो गवर्नमेंट सेक्टर पे हमने फोकस करना शुरू किया अराउंड 2016-17 आफ्टर कोविड। जब कोविड आया तो मे बी कोविड वो बस जिसने सबको झंझोड़ दिया, पर कोविड में कुछ ऐसा हुआ, हमारे पास थर्मल कैमरास की टेक्नोलॉजी थी। 23 मार्च को इंडिया में लॉकडाउन लगा। 20 मार्च को हमने पहला फीवर डिटेक्शन कैमरा इंडिजिनियसली डिजाइन करके लॉन्च कर दिया। 27 मार्च को पूरा कार्गो फ्लाइट्स बंद हो गई, and we were the only source of fever detection cameras and any other equipment apart from handgun। और 2 महीने पूरा मोनोपोली से हमने काम किया, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस से लेके सलमान खान के रेजिडेंस तक, ऑल अमेजॉन गोडाउन्स, वी वर द ओनली सोर्स फॉर दीज इक्विपमेंट्स। और वहां से ये जर्नी दोबारा चेंज हुई, और पिछले 4 सालों में हमने 6 times ग्रो किया टर्नओवर में, 10 times इन प्रॉफिटेबिलिटी। और वी बिलीव कि जिस तरह का माहौल अभी मेक इन इंडिया को और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को जिस तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल रहा है, दिस जर्नी विल ग्रो विद मच मोर पेस इन कमिंग ईयर्स। थैंक यू, दिस इज रियली इनक्रेडिबल। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इससे इंस्पायर होंगे जो जब से आपने शुरू किया, यू हैव बीन अ टॉर्च बेयरर, और कुछ ना कुछ नई चीज आप करते रहते हैं अगेंस्ट ऑल ऑड्स, बट यू हैव बीन एक्चुअली फ्लाइंग हाई। आपने बहुत सारी चीजों के बारे में अभी बताया, बहुत सारी इनोवेशंस जो आपने करी, बट एनी वन थिंग दैट यू वांट टू पॉइंट आउट कि वो आपका सबसे तगड़ा इनोवेशन इन ऑल द जर्नी दैट यू हैव डन, जस्ट वन, व्हाट इज दैट वन थिंग? तो सीसीटीवी कैमरा जब हमने इंडिया में पहली बार बनाया 2008 में, सीसीटीवी कैमरा बनाना इज नॉट अ रॉकेट साइंस। रॉकेट साइंस है उसको चाइना से कंपिटिटिव प्राइस में बनाना। तो सीसीटीवी कैमरा कोई भी बना सकता था, पर 2008 में देयर वाज नो इकोसिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बंद हो चुकी थी। उस टाइम पे सीसीटीवी कैमरे का जो पहला कैमरा हमने बनाया, वहां से एक मेजर चेंज आया। एक लोगों को रियलाइज हुआ कि इंडिया में भी कुछ चीजें हो सकती हैं। वो एक मेजर पड़ाव था जहां से पूरा का पूरा शायद मेरी जर्नी का पूरा गेम चेंज हुआ वहां से। दैट्स वन ऑफ द मेजर थिंग्स। और फिर जब ये कोविड के टाइम में हमने फीवर डिटेक्शन कैमरा बनाया, इनोवेशन की बात करें तो दैट वाज वन इनोवेशन विच वी आर रियली प्राउड ऑफ, कि ऐसे टाइम में जब कंट्री को या दुनिया को किसी एक ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी, कॉन्टैक्टलेस प्रोडक्ट्स की जरूरत थी, तो वी वर एबल टू क्रिएट इन अ वेरी लेस टाइम। दैट वाज
इनोवेशन टाइप से, और बट क्रिएशन वाइज सीसीटीवी कैमरा वहीं से पूरी जर्नी चेंज हुई। और आज पूरा सीसीटीवी की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शायद हम देख रहे हैं, आने वाले दिनों में देखेंगे, तो उसका बेस वो 24 जुलाई 2008 का जो लॉन्च था सीसीटीवी कैमरे का, शायद वो सबसे बड़ा पड़ाव था। थैंक यू संजीव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने दो पड़ाव, और बड़े डाइवर्स हैं ये दोनों चीजें। आप wherever you go globally, आप ट्राई कलर को हमेशा आगे रखते हैं, उसको हमेशा that has been your forefront, that has been your face towards the world. बट ये थीम जो हमारे इस सीजन का है, बिल्डर्स ऑफ न्यू इंडिया, सो आई वांट टू नो दैट व्हाट इज संजीव सहगल डूइंग टू बिल्ड न्यू इंडिया? हाउ आर यू बिल्ड, हाउ डू यू कॉल योरसेल्फ, और हाउ डू यू fall into the category of builder of new India? तो इसमें पहले ये ट्राई कलर आया कहाँ से, जस्ट इन अ मिनट आई विल कवर अप। तो जब हमने आईपी कैमरा डेवलप किया 2011 में, तो आईपी कैमरे की इंडिया में डिमांड ही नहीं थी और हमने बना लिया। अब क्या करें, तो बिकता कहाँ था? चाइना में बिकता था, सारी दुनिया चाइना खरीदने जाती थी। हमने चाइना में, बीजिंग में दुनिया का सबसे बड़ा सिक्योरिटी शो जो लगता है, वहां पे बूथ लगाया। अब लोगों को कैसे यूनिक दिखाई दें, तो -4 डिग्री पे हमने ट्राई कलर के कुर्ते पहन के और ट्राई कलर की चुन्नी पहनकर ये प्रोडक्ट लॉन्च किया। और इसमें दूसरा सबसे यूनिक पॉइंट ये था, क्योंकि हमारे पास वहां मैन पावर कम थी, तो 4 चाइनीज हायर किए थे। उन 4 चाइनीज को 4 दिन ट्राई कलर की चुन्नी और व्हाइट कलर के कुर्ते पहना के घुमाया था, उनके लिए यहाँ से लेके गए थे। तो यहाँ से ट्राई कलर की ये जो चुन्नी की स्टोरी या ट्राई कलर के पॉकेट स्क्वायर की जर्नी शुरू हुई। तो मेरे ख्याल से ये ट्राई कलर का पॉकेट स्क्वायर वाज योर आइडिया, जहां से हमने वहां से फिर उसको क्रिएट किया था। तो वहां से ये, और अब ये हमारा थीम बन गया है। इन एवरी इवेंट अगर हमने नहीं पहना हुआ था तो लोग पूछते हैं कि ट्राई कलर की चुन्नी या पॉकेट स्क्वायर कहाँ चला गया। तो ये एक हमारा ब्रांड इमेज बन गया है। अब बिल्डर्स ऑफ न्यू इंडिया की अगर हम बात करें, तो इन लास्ट फ्यू ईयर्स आवर गवर्नमेंट हैज रियलाइज कि मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग टू बी द मेन थीम। आज अगर चाइना की ग्रोथ हुई, विच आई बिलीव इज ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हमारा और चाइना का जो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, हमारे पास भी बहुत सारी पॉपुलेशन है, उनके पास भी बहुत सारी पॉपुलेशन थी जब उन्होंने स्टार्ट किया। और इतनी सारी पॉपुलेशन को अगर हमने जॉब्स देनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग इज द की थिंग, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग में देयर आर लॉट मेनी साइकिल्स। आज एक प्रोडक्ट बनता है, उसके एंसिलरीज, उस एंसिलरी के एंसिलरीज, तो एक बहुत बड़ी चेन होती है जहां पर जॉब्स क्रिएशंस होते हैं। तो छोटे से, मतलब एक स्क्रू बनाने वाले से लेके, एक उसका मैनुअल प्रिंट करने वाले से लेके, जब कंप्लीट प्रोडक्ट बनता है तो बहुत सारे लोगों को जॉब क्रिएशन होता है। मैं मतलब जब भी अपने एम्प्लॉइज को एड्रेस करता हूं तो मैं उनसे कहता हूं, यार जब आप एक अच्छा काम, कुछ भी अच्छा काम करते हैं और उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब एक आदमी बढ़ता है, तो आप समझो हर आदमी से 10 नए घर चलते हैं। जब हम अपने एंसिलरीज की बात करते हैं, तो एक घर जब हमारे घर में बढ़ता है तो 10 घर पूरे हिंदुस्तान में बढ़ते हैं जिनको जॉब्स मिलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स। तो यहाँ पे जब हमने प्रोडक्ट्स को क्रिएट करना शुरू करा, तो वहां पे हमें समझ में आया, तो दिस इज वेयर वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अप। अभी हम काशीपुर में एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर आ रहा है, वहां पर हम एज ए एंकर यूनिट आ रहे हैं। वहां पर हमारा विजन है कि 2000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार और 20,000 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार देंगे, जिनको हम ट्रेन करेंगे ताकि वो इन कैमरास को इंस्टॉल कर सकें, इसकी सर्विसिंग दे सकें। तो देयर इज अ ह्यूज डिमांड। तो यहां से है जहां हम नए भारत के लिए क्रिएट कर रहे हैं। मे बी आज हम नए भारत के लिए कुछ ऐसी पॉलिसीज पे भी काम कर रहे हैं। फॉर्चुनेटली फॉर मी, आई एम इन्वॉल्व इन मेनी पॉलिसी मेकिंग इनिशिएटिव्स अराउंड, चाहे वो नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स हो, नेशनल पॉलिसी ऑन टेलीकॉम हो। फॉर्चुनेटली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो वीडियो सर्विलेंस स्टैंडर्ड्स की कमेटी है, मैं उसका कन्वीनर हूँ। तो वहां पर हम कुछ ऐसी पॉलिसीज पे काम कर रहे हैं कि किस तरीके से डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके, एटलीस्ट इन आवर डोमेन, और वो एक ऐसा बेस बनाया जा सके। एंड वी आर प्राउड टू से, अभी वेरी रिसेंटली सीसीटीवी कैमरास को लेके एक नया पब्लिक प्रिक्योरमेंट ऑर्डर आया है, जो कि एक ऐसा बेस डॉक्यूमेंट बना है मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए कंपोनेंट लेवल से, जो कि आगे बेस बनने वाला है फॉर ऑल अदर आईटी एंड आईओटी। एक बहुत बड़ा मुहिम
जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था जब से वो सरकार में आए थे 2014 से, मेक इन इंडिया को लेते हुए, तो उसी के अराउंड ट्राइंग टू डेवलप द कंप्लीट इकोसिस्टम, ताकि लोगों को और ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके, कुछ लोग हमसे मोटिवेट हो सके, पॉलिसीज कुछ ऐसी हो कि जो लोग आज इंपोर्ट कर रहे हैं उनको मजबूरन इंडिया में बनाना पड़े, जब वो बनाएंगे तो उनके थ्रू भी ये इकोसिस्टम बढ़ेगा। तो दिस इज द वेयर आई बिलीव मैन्युफैक्चरिंग इज द मंत्रा फॉर अस टू बिल्ड अप द न्यू इंडिया। एक्सीलेंट, दिस इज एक्सीलेंट संजीव। और आपने कितनी अच्छी बात बोली कि थ्रू मैन्युफैक्चरिंग सो मेनी जॉब्स दैट यू आर क्रिएटिंग, सो मेनी एंसिलरीज दैट यू आर क्रिएटिंग व्हिच आल्सो क्रिएट लॉट ऑफ जॉब। तो डेफिनेटली यू आर वन ऑफ द बिल्डर्स ऑफ न्यू इंडिया। और इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी इंडस्ट्री की तरफ से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं दैट whatever you are doing for the country is absolutely incredible. Last thing, संजीव, हम आपसे ये जानना चाहते हैं that you are building, of course you are contributing, नए भारत में आप अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन नए भारत को चलाने के लिए when we reach 2047 the youth of today will play a very important role. तो वो एक मैसेज आज के यूथ के लिए, आज की यंग जनरेशन के लिए आप क्या देना चाहते हैं जो आने वाले भारत को चलाने वाले हैं आगे? आज के नए यूथ, जो आज यूथ है वो शायद 2047 में हमारी एज पे होंगे, जो आज जहां पर हमने पिछले 25 सालों में जहां पर हमने अपने ये जो भी इनिशिएटिव्स लिए या जो काम किए, पर आज के जो नया यूथ है उसके लिए अपॉर्चुनिटीज आर अनलिमिटेड। आज जो ये बेस बन गया है, हम कह रहे हैं कि आज इतनी सारी पॉलिसीज बन गई हैं जहां पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं इंपोर्ट्स को लेके, वहां पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है हर डोमेन में, और ना कि ओनली डोमेस्टिक के लिए, इवन फॉर एक्सपोर्ट्स देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, क्योंकि वर्ल्ड ओवर मैं तो ये कहूंगा अब चाइना +1 नहीं, खाली +1 के लिए भी लड़ाई हो रही है दुनिया में। पीपल आर नॉट ओनली लुकिंग फॉर, जिस तरीके से पिछले 2-3 सालों में कुछ एनवायरनमेंट चेंज होना शुरू हुआ है, तो एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट। और लोग इंडिया को बहुत ही नजदीकी से देख रहे हैं, जिस तरीके से हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह की पॉलिसीज हो रही हैं, तो उस पॉलिसीज को देखते हुए मैं नए यूथ से यही कहूंगा, not only restricting themselves for finding out the good jobs, they should look after how they can innovate few things, और किस तरीके से वो एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ा सकते हैं ताकि वो अपने अलावा और बहुत सारे लोगों को रोजगार दे सके, जो इन टर्न और लोगों को रोजगार दे सके। दैट शुड बी द की मंत्रा फॉर द न्यू यूथ। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो, किसी भी तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं। मतलब बिलीव मी, लोग डरते हैं कि चाइना से नहीं कम्पीट किया जा सकता। हम चाइना को चैलेंज करते हैं, हम अपने कस्टमर को कहते हैं आप अपनी बिल ऑफ एंट्री दिखा दो हमें, और चाइना एक्स वक्त से 1% लेस में माल देंगे। एंड बिलीव मी, आज तक जितने कंपोनेंट हमने इंडिया में डेवलप किए हैं, सब चाइना में से जितने में खरीदते थे उससे कम में डेवलप किए। अगर मैं कर सकता हूं तो आई बिलीव हर व्यक्ति कर सकता है, सिर्फ उसको थोड़ा सा अपनी सोच को, अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। इस चीज को सोचने के बारे में कि अगले साल हम अगले महीने क्या कर सकते हैं, हम अगर ये सोच लें कि शायद अगले 6 महीने में कर लेंगे, साल में कर लेंगे, पर वहां सोच बना ली तो शायद 6 महीने भी नहीं लगेंगे, 3 महीने में भी पूरा कर लेंगे। तो दैट्स वेयर आई वांट टू एनकरेज द यूथ to become entrepreneurs and generate more and more jobs and create value for themselves, for country and for the world. This is very, very inspiring, Sanjeev. There are a lot of opportunities. Create jobs, get into entrepreneurship, get into manufacturing and compete with the world. I think ये जो भी आने वाली जनरेशन या अभी की जनरेशन आने वाले समय के लिए इसको सुनेगी, it will be really very, very inspiring. Thank you very much for all your time, for your inspiring talks, and I think बहुत ही motivating और encouraging आपसे डिस्कशन रहा। हमारे आपके हजारों लाखों डिस्कशन हो चुके हैं इतने साल में, बट आज आपसे बात करके बहुत ही मजा आया। एंड जो सबसे बढ़िया आपने बात for the next generation बोली, I am really inspired and I am sure so would the next generation be. Sanjeev, thank you so much for coming on this show, और आपसे तो और बातें होती रहेंगी और मुलाकातें होती रहेंगी।
So finally, once again, thank you so much, and all the best for your journey ahead, and for creating more jobs in the country and competing with all the countries, whether in the neighborhood or otherwise. All the best. जय हिंद, जय भारत.